हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं प्रभुदेव शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी क्लास 9th की इस क्लास के अंदर। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था मोशन के बारे में, हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने अब तक एवरेज वेलोसिटी उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल करे और कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा, जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन और उसके कुछ ग्राफ्स के बारे में। इससे पहले एक मैं न्यूमेरिकल कराना चाहूँगा आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। सपोज करो दिस इज़ योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया था। दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम। दिस इज 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5 सेकेंड्स। सपोज करो जो ग्राफ आता है मेरा वो कुछ इस तरीके से आया। सो दिस इज योर ग्राफ O A B C D। सो क्वेश्चन क्या आता है? In the given graph, calculate number 1 distance covered in 3 seconds. Number 4 velocity at, the second is velocity at 4 second average velocity नहीं, मैं कहता हूँ speed average speed of the entire journey, and fourth part you need to calculate okay, we will do only 3 parts with the help of this diagram or with this is your graph. Okay, now first part of this question is distance covered in 3 seconds. Now this is your 3 second, just extrapolate it. So distance covered in 3 seconds is 3 मीटर। 3 सेकंड से आप ऊपर C पॉइंट तक के चले गए, ये देखा आपने 3 मीटर आया है। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड इज 3 मीटर। सेकंड क्वेश्चन, स्पीड एट 4 सेकंड। अब एट 4 सेकंड डिस्टेंस कवर्ड है आपके पास 3 मीटर एट 4 सेकंड। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 3, टाइम कितना है आपके पास 4 सेकेंड। सो इट एम्प्लॉयज 3/4 कितना आएगा मोटा मोटा आपके पास आएगा? दिस विल बी इक्वल टू 3 7 8 3 ओके 0.7 मीटर पर सेकेंड, ऑलमोस्ट 0.7 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी So total distance covered upon total time taken. This is average speed. अब एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 3 सेकेंड, 3 मीटर। टोटल टाइम टेकन इज 4 सेकेंड। सो इट विल अगेन बी इक्वल टू 0.7 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत आपका पार्ट 2 डेसिमल तक आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हमारे पास ये चीज़ हुई। अब इसके अंदर फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट आएगा क्या? डिस्क्राइब द मोशन from O to A to B,
B to C, fourth part C to D. Now you have to describe the motion from O to A to B, B to C and C to D part. Now O to A is a uniformly accelerated motion. Don't use the word acceleration, it is a uniform motion. O to A is a uniform motion, or you have a uniform velocity. A to B, time is increasing but there is no increase in the distance. So A to B, rest, body is at rest. B to C again कैसा है आपके पास में ये? यूनिफॉर्म मोशन. And then C to D is also again rest. So you will get questions like this for the graph between distance and time graph. Got it? Chalo. Next we have acceleration. So acceleration का मतलब होता है बच्चों देखो, change in rate of velocity. Now today we are going to discuss about acceleration, that is acceleration means rate of change of velocity. Rate of change of velocity with respect to time. Suppose this is your point A and this is your point B. Okay, a body is starting, suppose a body is starting from rest. So u is the initial velocity and v, body is starting with a velocity u meter per second and it reaches to B with a velocity v meter per second. So v is final velocity, and to reach from A to B it requires time t second. So t is equal to time to move A to B. Okay, so acceleration is equal to rate of change of velocity with respect to time, that is change in velocity divided by time. Change in velocity means final minus initial velocity, that is final minus initial velocity divided by time. Final velocity is considered as v and initial velocity is considered as u. So v minus u divided by t is your acceleration, where a is equal to acceleration. Clear? A is equal to v minus में u divided by t. Now we will see units of acceleration. V minus u, velocity minus velocity, the unit will be meter per second divided by time is again second. Meter per second, meter divided by second divided by second. So ये क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड इंटू 1 by second. It means meter per second square. This is the unit of acceleration. Is it clear? I'm again repeating. Acceleration means rate of change of velocity with respect to time, that is from A to B. If velocity is moving from, suppose करो आपने स्टार्ट किया घर से रेस्ट पे होगा, तो if body is at rest u is equal to 0 हो जाएगा. तो आपने स्टार्ट किया विद वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी आपने मान ली हमारी v, और फ्रॉम u to v इट टेक्स t सेकेंड्स. आपको t सेकेंड के अंदर आप लोग u to v तक पहुंचे. So u is initial velocity, v is final velocity and t is the time taken to move from A to B or time taken to reach from velocity u to velocity v. Clear? चलिए जी. Now A is your acceleration. We know that acceleration means change in velocity divided by time. So change in velocity means final velocity minus initial velocity divided by time. Final velocity is v,
initial velocity is u, so a is equal to v minus में u divided by t, and if you just make it interchange it, at is equal to v minus में u, it implies v is equal to u plus at, v is equal to u plus at, and बच्चों this is your first equation of motion. v is equal to u plus at is your first equation of motion. Got it? क्लियर हो गई बात? चलिए, सो हमारे पास यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन की हमने डिफाइन कर लिया भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। अब जरा एक बात देखो, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस में क्या रिलेशन बनता है, ध्यान से देखना इस बात को। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी हम लोगों ने, क्लियर। सपोज करो मैंने पढ़ा था क्या, डिस्टेंस था, क्लियर। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करा मैंने, क्या बन गया, वेलोसिटी बनी, क्लियर। वेलोसिटी को फिर टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये आप लोग समझने के लिए याद रखना, डिस्टेंस था, टाइम से डिवाइड कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। याद आ गया, समझ गए। अब एक बूस्टर पॉइंट नोट कीजिए आज का, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अ वेरी शॉर्ट टाइम इज नोन एज जर्क। झटका जिसे कहते हैं ना हम लोग, जर्क, वो आता है। वो अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के मैंने बता दिया। बच्चों अभी हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ है, कम से कम अभी 10 से 15 मिनट अभी आपको आराम से बैठना पड़ेगा। अगर आप बैठना चाहते हो अच्छे से तो फटाफट ईयरफोन लेके बैठ जाओ हमारे पास, ठीक है जी। राणा सर समझ गए ना, अब मैं आपको ही बोल रहा था ये वाली बात। एक्सेलरेशन हो गई बात, क्लियर हो गई बात, चलो जी। अब आप आ जाओ एक्सेलरेशन के बाद में कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, चलिए, ठीक है। सपोज a body is moving at a velocity 5 meter per second and accelerates to 10 meter per second in 2 seconds। भाई एक बॉडी थी दैट इज मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, उसने स्पीड पकड़ी और 10 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच गई, और 5 से 10 तक पहुंचने में इट टेक्स 2 सेकेंड्स। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस में u डिवाइड बाई टी। फटाफट बताया था मैंने, हमेशा फॉर्मूला लिखना है आप लोगों को। v क्या है, गिवन पार्ट लिखो फटाफट, गिवन पार्ट क्या है, v is equal to 10 meter per second, u is equal to 5 meter per second, very good, and time is equal to 2 second। ठीक है भाई, अब फटाफट ये तीनों की तीनों चीजें जस्ट पुट इन द इक्वेशन। v कितनी आई आपके पास 10, u कितना है 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 बाई 2 इज इक्वल टू 2.5, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी योर एक्सेलरेशन। क्लियर हो गई बात, पक्का। भाई एक बात बताओ, एक्सेलरेशन वही है, आप लोग अगर एक्टिवा चलाते हो, बाइक चलाते हो तो रेस देते हो ना, वो जो हिंदी में बोलते हैं ना, रेस दो रेस दो, गाड़ी बोलते हैं पापा एक्सेलरेटर दबाओ एक्सेलरेटर दबाओ, बहुत तेज चलाओ, तो वो जो एक्सेलरेटर दबाने का मतलब होता है एक्सेलरेशन करना। क्लियर हो गई बात। अब एक बात बताइए, हमने एक्सेलरेशन तो दबा दी कर दिया, बट अचानक से अगर कोई आ गया हमारे आगे तो क्या करते हो, अब ब्रेक दबाते हो। तो ब्रेक दबाते हो तो क्या होता है, सपोज ए कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड एंड इट applies brake to reduce speed
स्पीड टू 30 मीटर पर सेकेंड। अब जब ब्रेक लगाओगे बच्चों तो कुछ ना कुछ तो टाइम जाएगा, एंड इट टुक 5 सेकेंड टू रीच एट ए स्पीड ऑफ दिस। इट टुक 5 सेकेंड टू अप्लाई ब्रेक। नाउ what is एक्सेलरेशन? फटाफट मुझे आंसर बताओ, क्या एक्सेलरेशन आया आप लोगों का? क्या आंसर आया? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होता है? गिवन v u और t, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। क्लियर है? A car is moving with a velocity of 80 meter per second. It applies brake and reduce to 30 meter per second. तो reduce to 30 meter, ये क्या हो गया? v हो गया बच्चों, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल क्या थी? 80 मीटर पर सेकेंड। फटाफट जी, वेरी गुड। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस में u डिवाइड बाई t। फॉर्मूला है, जस्ट पुट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस। v कितना है हमारे पास बच्चों? 30। u कितना है हमारे पास? 80 डिवाइड बाई टाइम कितना है? 5। ये कितना आ गया? -50/5 इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से देखो, यहां पे ये क्या आ गया? माइनस का साइन आया। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन तो हुई बट नेगेटिव। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, और सिंपली वी कैन से नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब कभी ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। भाई आप बहुत तेज स्पीड पर चल रहे हो, थोड़ी स्पीड कम हो गई तो क्या होगा? उसे बोलेंगे हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है बात सबको ये? चलो जी, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्लियर। सो एक्सेलरेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, द पॉजिटिव वन एंड द नेगेटिव वन। In case of positive acceleration, velocity always increases. If initial velocity is suppose 10 meter per second, then final will be more than 10. If final velocity is more than initial velocity, then we say positive acceleration. And if final velocity is less than the initial one, final velocity is less than the initial one, then we say negative acceleration or retardation. Clear? Got it? समझ में आ गई बात आप लोगों को? नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन से क्या मतलब होता है? ठीक है, सपोज करो आप लोग 20 की स्पीड पे चले जा रहे हो फॉर 5 सेकेंड। इफ ए कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स, तो क्या हुआ? आपने स्पीड तो चेंज करी ही नहीं। जब आपने स्पीड ही नहीं चेंज करी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v और u दोनों सेम हो जाएंगे। तो v और u दोनों सेम हो गए तो जीरो। सो वी कॉल दिस एज अ जीरो acceleration. Whenever there is zero acceleration, it means that there is no change in velocity with respect to time, which means a body is moving with uniform velocity. अगर कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव कर रही है, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है? उसकी वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी। जब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। बिकॉज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी का चेंज ही जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताता हूं, फटाफट रुको। व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, वेदर इट विल हैव एक्सेलरेशन और नॉट? फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए ये। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द केसेस व्हेन बॉडी कैन हैव जीरो एक्सेलरेशन? व्हाट आर द केसेस व्हेन बॉडी कैन हैव जीरो एक्सेलरेशन? ओके, दो क्वेश्चन है आपके पास, घर से ट्राई करने की कोशिश करना। चलिए, सो एक्सेलरेशन वाला पार्ट में हमने 3 टाइप के एक्सेलरेशन पढ़े, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज। नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज, एंड जीरो वेलोसिटी देयर विल बी नो चेंज। चलो अब हम पढ़ते हैं बच्चों ग्राफ। नाउ वी विल स्टडी अबाउट
ग्राफ, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, दिस इज योर वेलोसिटी। हमेशा क्या लिखते हैं बच्चों इस तरीके से, यूनिट मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर टाइम, हमने लिख दिया सेकेंड। क्लियर हो गई बात? चलो अब एक टेबल बनाते हैं यहां पे हम लोग, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम हो गया हमारे पास सेकेंड में। एक टेबल बनते हैं। सबसे पहले क्या है, एक बात और, इससे पहले एक छोटी सी चीज आपको बताना पड़ा चाहता हूं मैं। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट देन u इज इक्वल टू 0। याद रखना, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट u इज इक्वल टू 0। u का मतलब क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। अगर आप किसी चीज को ऊपर थ्रो करते हो, इफ यू आर थ्रोइंग, सपोज करो ये आपने थ्रो किया, अब ये एक पोजीशन ऐसी थी ना, यहां पे आके ऐसा लगा था रुक गया हो, ये क्या है उसका थ्रो का हाईएस्ट पॉइंट। सो इफ यू आर थ्रोइंग समथिंग अप देन एट हाईएस्ट पॉइंट, when throwing something vertically, then v is considered to be 0। किसी u वेलोसिटी से हम थ्रो करेंगे, then v is considered to be 0 at हाईएस्ट पॉइंट। बस ये दो बातें याद रखना बच्चों। इफ यू आर थ्रोइंग समथिंग अप देन एट हाईएस्ट पॉइंट v इज कंसिडर्ड टू बी 0। चलो भाई, ये मैंने वेलोसिटी लिख दी यहां पे, वेलोसिटी v से, ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है यहां पे, ये वेलोसिटी से मतलब है मेरा यहां पे अंदर, ठीक है। चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह सकते हो, और इसको हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ कह सकते हैं। अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो इट विल बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हमारे पास डिस्टेंस की बात करेंगे तो स्पीड वाला आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे देन इट विल बी वेलोसिटी आ जाएगा। क्लियर? चलो जी, अभी चलो मैं इसको स्पीड टाइम ग्राफ लिख देता हूं, क्योंकि मैं इसके अंदर वेलोसिटी नहीं बताऊंगा, मैंने स्पीड लिख दिया। स्पीड को रिप्रेजेंट मैं करता हूं, v से ही रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को। दिस इज, ये हो गया स्पीड। ओके, चलो अब वेलोसिटी इनिशियली 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0 भाई। अब स्टार्ट हुआ एट टाइम t इज इक्वल टू 5, वेलोसिटी इज 10। एट टाइम t इज इक्वल टू 10, वेलोसिटी इज 20। एट टाइम t इज इक्वल टू 15, वेलोसिटी इज 30। एट टाइम t इज इक्वल टू 20, वेलोसिटी इज 40। क्लियर? एंड टाइम t इज इक्वल टू 25, वेलोसिटी इज 45। ये मेरे पास ग्राफ आ गया। मैंने क्या करा, ये बना दिया बच्चों यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50 आ गया। चलो भाई, सबसे पहले क्या है, 0, 0, ये इनिशियल हो गया आपके पास, ग्राफ हो गया। नाउ टाइम 5, वेलोसिटी 10, टाइम 5, ये थोड़ा गड़बड़ बन गया बच्चों, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। 0 मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। दिस इज 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ये पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है जी। देन सेकंड इज 10 एंड 20। 10, 20 के पास आपके पास पॉइंट आता है बच्चों, दिस इज योर 10 एंड 20 पॉइंट। देन वी हैव 15 एंड 30, 15 एंड 30 पॉइंट, दिस इज योर 15 एंड 30 पॉइंट। देन वी हैव 20 एंड 40, 20 एंड 40, 20 ये हुआ, और 40 मेरा आता है यहां पे, ये आ गया पॉइंट कुछ। सो मेरा ये आपने देखा, ये ग्राफ बन गया यहां तक का। तो दिस O, A, B, और ये मेरा है C पॉइंट। नाउ एट 25 वेलोसिटी इज 45, वेलोसिटी 45 कहाँ का, यहाँ आएगा कहीं पे। तो ये क्या है मेरा, कुछ इस तरीके से हो गया। क्लियर? अब
30, वेलोसिटी इज अगेन 45, एट 35 वेलोसिटी इज अगेन 45, तो 45 आ गया। 30 है, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, एक्स्ट्रापोलेट कर देता हूँ, ये 35 कर दिया, ये 40 कर दिया, तो वेलोसिटी क्या है, कुछ इस तरीके से आपको मिल गई, ये डी और ये हो गया ई पार्ट। सो ये मेरे पास ग्राफ की सीक्वेंस दी हुई थी बच्चों, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब देखो पहला पॉइंट, स्लोप। स्लोप के बारे में क्या बताया था, y बाई एक्स। y क्या है आपके पास, वेलोसिटी, और स्पीड, स्पीड डिवाइड बाई टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। स्पीड डिवाइड बाई टाइम क्या हो गया, एक्सेलरेशन। सो इट मींस स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन। याद रखना इस बात को, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम O टू C, O to C, uniform acceleration because velocity is changing uniformly। जरा डिवाइड करके देखो, यहां पे मैं क्या करता हूं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूं, ये 0 आएगा, 10/5 2, 20/10 2, 30/15 2, ये 2 to 2 कैसे आ रहा है, सपोज A B C D E, 10 minus 0, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 10 minus 0 डिवाइड बाई 5 2 आ गया, 20 minus 10 डिवाइड बाई 10 2 आ गया, 30 minus 10 डिवाइड बाई 30 minus 20 डिवाइड बाई 15 2 आ गया, 40 minus 30 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 20 2 आ जाएगा। सो इस केस में क्या है, 2 आ रहा है, जरा यहां देखोगे कितना आ गया, 45 डिवाइड बाई माइनस 40 5, 5/5 1 आ गया, यहां पे कितना आ गया, 0 0, 45 माइनस बाई 45 डिवाइड बाई 5 0 होगा। क्लियर है। सो फ्रॉम O to C दिस इज यूनिफॉर्म acceleration. From O to C it is uniform acceleration, but velocity is not uniform. Remember that thing, from O to C there is uniform acceleration, but there is no uniform velocity or uniform motion. Is it clear? Because equal distance is not covered in equal interval of time. चेक करके देख लो, A to B मैं देखता हूं यहां पे, A to B डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपके पास, 10, A to B 10 वेलोसिटी, टाइम टेकन 5, S इज इक्वल टू 50 आ गया, 50 मीटर आ गया आपके पास। क्लियर है ये बात। अब A to B के बाद में आप देखो कौन सा, B to C। अब B to C देखिए, B to C वेलोसिटी कितनी आएगी आपके पास,